Hey guys, welcome back to my channel. This is going to be my first long form video. I thought of making shorts only in my channel, but then again I realized that making shorts every day is difficult because I don't really have new things to show every other day. So yeah, this is going to be my first video and I thought I'd also introduce myself to you people. So my name is Aniket and I am here in Ireland for my masters in cybersecurity from India. So today's topic is going to be the housing crisis in Dublin, in which I have been facing a lot of problems lately. So to begin with, मैं यहाँ पे आया था back in January and my current tenancy is in a student accommodation. It's till May 29th, so I'll have to move on May 29th. तो उसके लिए I started looking for a new apartment with a friend of mine. We were looking for a sharing room and not gonna lie, we found a couple of like good apartments, but then again the problem was the people are really annoying here. Like I'll be very honest, यहाँ पे जो लोग रेंट देते हैं, they are maximum majority of them are Indians. I haven't come across any Irish people yet who is renting their place or their apartment. Maybe it's mostly Indians subletting, or it's either Indians or it's companies handling the properties. So अगर आप कोई property, कोई apartment, कोई भी property अगर आप कोई company के through देखते हो तो उसमें they charge you a lot, like more than the usual amount. For example, if you're looking for a twin sharing room here in Dublin, it will cost you around 650 to 700 euros the rent. It's the like, basic or the bare minimum rent I think. उसके नीचे भी मिल जाता है थोड़े बहुत, 450 500 550 तक, लेकिन those are very real, those are very like rare. The most are from 600 650 like that. And if you're going via any company, they're going to charge you around 700 or 750 maybe, and that is excluding the bills. For the bills you have to pay extra amount. So I thought let's join the room hunting groups and then वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. Of course वहाँ पे daily 10-15 postings आते रहते हैं. So we thought we'd look for the apartments from there and we'll visit the places physically and verify if they're real or not. तो ऐसे करके हमें first एक मिला. तो the problem is my friend who was to move out with me, वो भी एक स्टूडेंट एकोमोडेशन में ही है, नॉट माई वन, अ डिफरेंट वन. बट उसका अभी का एग्रीमेंट ख़त्म होता है ऑन मे 14th एंड मेरा ख़त्म होता है ऑन मे 29th. तो जो अपार्टमेंट हमने देखा, जो घर हमने देखा, वहाँ पे वी स्पोक विद द ओनर एंड हमारा ऐसे डील हुआ कि एक बंदा आएगा मे 1st को ही एंड जो दूसरा मैं आऊँगा जून 1st को. ऐसे करके हमने वहाँ पे बात करके आया एंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट. तो दे ऑफर्ड अस अ काउंटर ऑफर. वहाँ पे उसी घर में 2 कमरे थे, एक डबल रूम था जो वो शेयर कर रहा था, लाइक जो शेयरिंग रूम था. तो उस बंदे ने, उस ओनर ने हमें बोला कि जो शेयरिंग रूम है वो हम रेंट पे दे रहे हैं. तो वी वर लाइक ओके, दिस इज़ द रूम, वी लाइक इट, वी लाइक द प्लेस, वी लाइक द अपार्टमेंट, वी लाइक द हाउस, एवरीथिंग. एंड द ओनली कंडीशन वी हैव इज़, एक आएगा मे 1st को एंड दूसरा जो मैं हूँ वो आएगा जून 1st को. बट हमें लगा था कि वो नहीं मानेगा, बट देन इनिशियली ही अग्री टू दैट एंड ही सेड ओके ऑल राइट, आई एम ओके विद द टर्म्स. एंड हम उसको कंफर्म करके आ गए. तो बाहर निकल के हम जब उससे फिर मैसेज में बात, व्हाट्सएप पे बात हो रहा है उससे, वी आर स्पीकिंग ऑफ द डिपॉजिट एंड ऑल. तो सारा कुछ बात होने के बाद वो बोलता है कि नहीं, यू विल हैव टू मैनेज द रेंट, हम वैसे रूम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे एक आदमी को रूम दे देते हैं एंड यू आर कमिंग फ्रॉम जून, तो 1 महीने का रेंट मेरा नहीं मिलेगा मेरे को. तो देन यू गाइज विल हैव टू मैनेज द रेंट और पे द रेंट और स्प्लिट द रेंट, एनीथिंग यू वांट. मतलब बेसिकली बात ऐसा है कि तुम रूम पे रहो ना रहो, तुमको वो 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा. एंड वी वर लाइक कि जिसने हमें रूम दिखाया उसने कुछ अलग बात बोला एंड जिससे डिपॉजिट का बात हो रहा है वो कुछ अलग बात बोल रहा है. तो ऐसे थोड़ी होता है. तो हमने उससे बोला कि जो इंसान हमें रूम दिखाया उसने हमें ऐसे बोला एंड हमने अपना टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताया था एंड ही एक्सेप्टेड. एंड उसके बाद हमने प्रॉपर्टी फाइनलाइज किया. बट देन अगेन यू आर टेलिंग मी समथिंग डिफरेंट, सो दिस इजंट हाउ इट शुड बी राइट. तो ऐसे बोलने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, विल गेट बैक टू यू एंड विल लेट यू नो कि हम उसके लिए राज़ी है कि नहीं. तो हमने भी बोला ठीक है. 2-3 दिन हो गया, उसका कॉल नहीं आया. उसके बाद जब हमने रीच आउट किया तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
तुमको या तो रेंट देना पड़ेगा, नहीं तो तुम देख लो दूसरा कुछ। मैंने बोला ठीक है। ये बोलने के बाद वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर अपार्टमेंट्स एंड टू बी ऑनेस्ट हमें एक उससे बेटर ऑप्शन मिला जो एरिया वाइज भी बेटर था, जिसका रूम वूम भी बेहतर था, सब कुछ वॉज लाइक वे बेटर दैन द फर्स्ट वन। तो हमें लगा कि चलो इसको फाइनलाइज करते हैं। एंड जब हम ये सेकेंड अपार्टमेंट देखने जाएंगे उसी टाइम मेरा वो पहले अपार्टमेंट का जिसने हमारा व्यूइंग कराया था, जिसने हमें रूम दिखाया था, उसका मैसेज आता है। वो बोलता है कि वी हैव अ काउंटर ऑफर फॉर यू। तो मैंने बोला क्या? तो उसी सेम घर में ही जो डबल रूम वो लोग शेयर कर जो डबल रूम वो रेंट पे दे रहे थे, उसके बगल में एक सिंगल रूम भी था। तो वो बोलता है कि आस्क योर फ्रेंड कि वो फर्स्ट मंथ के लिए सिंगल रूम में आ जाता है, उसके बाद देन जो सेकेंड मंथ पे आप उसको ज्वाइन करते हो तो देन यू गाइज टुगेदर मूव टू द अदर रूम। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये भी अच्छा डील है। बट द प्रॉब्लम इज़ आपको यहाँ पे 750 यूरोज़ का रेंट देना पड़ेगा फर्स्ट मंथ के लिए, एंड सेकेंड मंथ के लिए आपका रेंट विल बी 600। मतलब फर्स्ट मंथ आपको 150 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको सिंगल रूम मिलेगा, एंड सेकेंड मंथ आप दोनों सेम रूम में रहोगे तो वहाँ पे आपको 600 इंडिविजुअली देना पड़ेगा। तो टोटल रूम फॉर द रेंट इज़ 1200 यूरोज़। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये बोल के मैंने उसको बोला ठीक है, हम आपको बताते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस जो सेकेंड अपार्टमेंट हम देखने जा रहे थे दैट वाज बेटर, एंड ऑल्सो बिकॉज उसके पहले अपार्टमेंट हम जो देख के आए उसमें 5-6 दिन हो गया था। वी डिडंट रियली पे अटेंशन टू दैट गाय बिकॉज लाइक इफ़ यू आर चेंजिंग योर टर्म्स एंड कंडीशंस दैट ईजीली देन हाउ इज़ इट रिलायबल। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, सेकेंड जो अपार्टमेंट है वो जाके देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा लोचा होता है। We go there, we see the apartment, it's really good, it's a newly built complex which is clean and all, and the area, the neighborhood is also very good। और ये जो सेकेंड अपार्टमेंट था इसमें रूम में 2 सिंगल बेड्स थे। जो पहले वाला अपार्टमेंट था इसके रूम में एक ही डबल बेड था। तो द सेकेंड अपार्टमेंट we go there, we like the rooms, we talk everything out, and then again we lay out our terms and conditions। and इसमें जो चीज़ होता है कि ये 2 BHK अपार्टमेंट होता है एक। तो एक अपार्टमेंट में 2 BHK अपार्टमेंट था, तो एक रूम में एक दीदी रहती है, उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड या उसकी कोवर्कर रहती है, एंड लीज जो है वो ये दीदी के नाम पे रहता है। एंड जो दूसरा रूम होता है वो दूसरा रूम में 2 बंदे रहते हैं, एक दोनों ही स्टूडेंट है। एक मूव आउट करने वाला है मई में और दूसरा मूव आउट करने वाला है जून में। तो उन्होंने वो जो दीदी है जिसके नाम पे लीज है, उन्होंने मेरे से पूछा कि तब तुम्हारे साथ हम लोग का टर्म्स एंड कंडीशन एकदम एग्जैक्टली इज मैचिंग, तो यू टेल मी योर डेट, अकॉर्डिंगली आई लेट द अदर पर्सन नो जो जून में जाने वाला है, आई लेट हिम नो योर डेट एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन शिफ्ट देन। तो ये एकदम दोनों के लिए परफेक्टली एकदम पीसेस आर फिटिंग टुगेदर। तो हमने बोला चलो सही है, बहुत अच्छा डील है ये तो। और जो दूसरा जो पहला बंदा था जो मई में ही मूव आउट करने वाला था, एंड ही वॉज रेडी टू मूव आउट ऑन एनी डे, लाइक हम उसको डेट बताते हैं एंड ही वॉज ready to move out because he was moving to a different city which is Galway। So yeah, the terms and conditions were fitting perfectly in this case। तो हमें लगा चलो ठीक है, ये अपार्टमेंट भी बढ़िया है एंड लाइक इट्स नीट एंड क्लीन एंड द रेंट इज़ ऑल्सो सेम, प्लस लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट गुड अबाउट दिस अपार्टमेंट। सो हमने वहाँ पे भी बैठ के उनको बोला, मैंने बोला कि मैं मई 25 को आऊँगा एंड मेरा जो दोस्त है वो मई 1 को ही आ जाएगा। तो उन्होंने सारा कुछ बोला कि चलो ठीक है, दिस इज़ ऑल राइट। तो मैं जो सेकंड बंदा है उसको जाके बोल दूंगी कि तुम 25 के पहले मूव आउट करना, सो यू कैन मूव इन ऑन 25। मैं बोला चलो हाँ ठीक है, दिस इज़ गुड। ये बोल के हमने वहाँ पे बैठ के कंफर्म कर लिया सारा कुछ करके। मैंने बोला कि ठीक है, आप अपना बैंक डिटेल्स भेज दो। मैं तब शाम हो गया था तो मैं बोला कि आप अपना बैंक डिटेल्स भेज दो, मैं रात को घर पे बात करके आपको कल सुबह तक डिपॉजिट कर दूंगा, एंड मेरा जो फ्रेंड है वो मई 1 को मूव इन कर लेगा। दिस वॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग वॉज स्पोकन ऑफ। ये करके हमारे अगले दिन सुबह को मैंने उसको टेक्स्ट किया, वो दीदी को मैंने बोला अपना बैंक डिटेल्स भेज दो, आई पे द डिपॉजिट मनी, वी आर फाइनल। तो फिर वो बोलती है कि बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ जो सेकंड बंदा है वो वाज अबाउट टू मूव आउट ऑन जून। अभी वो बोल रहा है कि ही मूव आउट ऑन मई 1 ओनली, सो तुम दोनों को मई का रेंट मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है, आप एक बार कुछ बोलोगे दूसरे बार आप कुछ और बोलोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो बोली कि सी आई रियली वांट यू गाइज टू मूव इन, तो द मोस्ट आई कैन डू इज़ मैं तुम दोनों के लिए 10 दिन का रेंट मैनेज कर दूंगी, लेकिन उसके बाद से यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो मैं बोला कि जो पहला बंदा है वो तो मई 1 को ही आ जा रहा है एंड आई एम मूविंग इन, आई वॉज अबाउट टू मूव इन ऑन मई 25। तो शी सेड कि या देन यू विल हैव टू पे आफ्टर 10 days, मतलब मई 11 से लेके मई 25 तक मैं वहाँ पे रहूँगा नहीं, लेकिन मेरे को उसका रेंट पे करना पड़ेगा, विच वॉज अराउंड 500 यूरोज़। ये जो
11 से 25 का डे है, इसमें मेरे को 500 यूरोज विच इज़ अराउंड 55,000 इंडियन रुपीज़ मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। एंड शी टोल्ड मी दिस ऑन कॉल। आई सेड ओके लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो वो बोली कि ठीक है। सो इनिशियली द थॉट केम टू माई माइंड कि चलो ठीक है दे देते हैं पैसे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ी होता है। उसने बताया इफ़ यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस देन यू स्टिक टू इट। दिस इज़ लाइक द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको प्रॉब्लम है देन यू जस्ट से इट आउट कि नहीं होगा, यू टू हैव टू मूव इट ऑन द फर्स्ट डे, अदरवाइज यू कांट मूव इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो मैं बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं होता। मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने उसको कॉल बैक करके बोला कि देखिए कल रात तक भी आप बोल रही थी कि वो जून में जाएगा, अभी सडनली इफ़ यू आर चेंजिंग एवरीथिंग इट लाइक इट मैसेस विद द अदर पर्सन हेड, राइट। कोई हम अगर कोई रूम देख के आ रहा है, अगर हम कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं तो वी आर प्लानिंग समथिंग, वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर बजट एंड वी हैव अ प्लान इन आवर माइंड, एंड इफ यू आर चेंजिंग इट इन द लास्ट मोमेंट देन इट messes with everything. So she said yeah I understand, but then again that guy told us कि वो जून में जाएगा, बट कल रात को वो सडनली बोला कि no he'll move out on May itself. तो मैं बोला कि अगर he is changing his plans, अगर he is changing his tendency in the last moment, so how is it my responsibility to pay for his rent? It's his responsibility to pay for the remaining weeks, so it's not my problem, it's his problem, right? तो मैंने उसको समझाया कि देखो आप उससे बात करो, लाइक या दिस इज लाइक बेसिक कॉमन सेंस। अगर किसी का एग्रीमेंट है जून तक, हाउ कैन ही जस्ट मूव आउट सडनली एंड एक महीने लास्ट जो एक महीने का रेंट है वो जो नया टेनेंट आएगा उसको देना पड़ेगा। इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो मैंने उसको बताया, तो शी सेड ओके लेट मी टॉक विथ हिम एंड आई विल लेट यू नो। मैं बोला ठीक है चलो। तो ये बात मेरे को 2 दिन पहले सुबह को हुआ। शाम तक उसका कोई टेक्स्ट आया नहीं, वो जो दीदी थी उनका कोई टेक्स्ट आया नहीं। तो शाम को मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके बोला एनी अपडेट ऑन द rent because we have to finalize, because I am moving to India tomorrow. By the time I upload this video my packing will be done hopefully, so yeah I'll make more videos on that as well. So anyways coming back to the topic, तो मैंने उनको बोला कि we have to finalize because I have some plans ahead, we really want to finalize and pay the deposit if it works out. तो वो बोली कि मैं अभी उससे बात करती हूँ, अभी बात करके मैं तुमको बताती हूँ। मैं बोला ठीक है। तो देन 5 मिनट बाद उसका टेक्स्ट आता है कि वो बोलती है कि नहीं होगा, दैट गाय इज़ रियली मूविंग आउट ऑन May 1st, सो यू विल हैव टू डू इट, और नहीं तो वी कांट प्रोसीड विथ यू गाइज। मैं बोला कि चलो ठीक है ऐसे थोड़ी होता है, दैट विल बी टू मच फॉर अस टू अफोर्ड। एंड अफोर्डेबिलिटी से भी ज़्यादा बात इसका आता है कि किसी का कोई बात का टर्म्स एंड कंडीशन, तो किसी के कोई बात का तो वैलिडिटी होना चाहिए ना, कि दिस इज़ माई एग्रीमेंट, आई हैव दिस ऑन माई माइंड कि मुझे यहाँ से यहाँ तक रहना है कहीं पे, एंड इफ़ सम न्यू टेनेंट इज़ कमिंग तो उसका भी कोई बात बनता है कि नहीं मैंने जब बोला है मैं रहूँगा तो मैं रहूँगा। तो लाइक इट्स लाइक द सिचुएशन हेयर इज़ सो कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबलेटिंग एज फार एज आई नो इज़ नॉट लीगल हेयर इन आयरलैंड। अगर आपके नाम पे लीज है you can't just give it to someone else and they can't really bring in tenants, so it's a different scenario, but then again everyone is doing the same thing, so it's not really a problem. But anyways the thing is कि अगर कोई rent भी दे रहा है ऐसे करके तो at least you stick to your words or anything. So what I suggest for new students who are coming here in Ireland is to book, like I would really suggest everyone to come here in a student accommodation and maybe try to book it for a whole academic year. The problem is जो लोग सितंबर से आते हैं, सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को तो सितंबर से सितंबर तक मिल जाता है। मोस्टली पीपल कम हेयर फॉर मास्टर्स एज फार एज आई नो, तो मास्टर्स के लिए 1 ईयर का मिल जाता है। एंड द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट एकोमोडेशंस इज दे डोंट रियली अलाउ यू टू स्टे देयर व्हेन यू आर नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर। तो अगर जब आपका स्टूडेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, जब आपका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हो जाता है, तो दे विल आस्क यू टू मूव आउट एंड यू रियली हैव टू रीड आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी केयरफुली, बिकॉज ये मेरे साथ भी होने वाला था। आई वॉज बुकिंग अनदर स्टूडेंट एकोमोडेशन यहाँ से जाने के बाद, लाइक ये मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, ये मैं 1-1.5 महीने पहले कर रहा था। आई रियली स्पोक विथ अनदर स्टूडेंट एकोमोडेशन, आई डू इट वाया एम्बर। तो या आई वॉज स्पीकिंग विथ अ प्रॉपर्टी एंड मैंने उनको बोल दिया कि मैं ऐसे आऊँगा। I came here on January, I need my room till from May till January 27th. तो उन्होंने सब कुछ बोला एंड आई ऑल्सो पेड द इनिशियल डिपॉजिट, बट देन अगेन जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने के लिए मेरे को भेजा तो वो पढ़ के मेरे को समझ आया कि दे विल नॉट अलाउ मी टू स्टे देयर व्हेन माय स्टूडेंट स्टेटस एंड्स।
सो अच्छा वो मैंने पढ़ लिया ली, तो मेरा मैं वहाँ पे चला जाता तो मेरे को फिर हरासमेंट होता, क्योंकि आई वाज बुकिंग इट फ्रॉम आई थिंक अगस्त 2026 टू अगस्त 2027। तो अगर मैं वहाँ पे चला जाता तो वो मुझे जनवरी 2027 को निकाल देते। सो या द प्रॉब्लम इज़ स्टूडेंट एकोमोडेशंस डोंट लेट यू स्टे देयर। मुझे नहीं पता अगर कोई ट्रिक है तो, बिकॉज आई एम स्टिल कंपैरेटिवली न्यू हियर, मैं जनवरी में आया हूँ, अभी इट्स ओनली अप्रैल, तो आई डोंट रियली हैव अ ट्रिक और आई डोंट नो इफ देयर इज एनी वे। बट या आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर कमिंग फॉर सेप्टेम्बर इनटेक, तो आपको पूरा 1 साल के लिए अगर मिल जाता है, गो फॉर इट, दिस इज़ द बेस्ट। यू गेट अ सिंगल रूम, यू गेट एन अटैच्ड washroom, only the kitchen is shared, but then again it's manageable. So if you like to stay private, it's the best option, and it's also reliable. You have everything in campus, like inside your complex. You have a gym, you have a common area, you have a study room, you have everything inside the complex. The washroom is clear, crystal clear, clean, crystal clear. The rooms are clean, it's maintained, everything is just perfect for students. But if you are planning to move in on a rented apartment, then that is when it gets really tricky. So yeah, I would suggest students to come here on student accommodation, then move on to apartments maybe. So yeah, this is how you do it. And September intakes, like I said, it's easy. For January intake guys, you guys are really unlucky like me. So I would suggest come here on a student accommodation. यहाँ पे आके rooms देखना चालू कर दो, make contacts, because that is the only way. नहीं तो आपको मेरे तरह भुगतना पड़ेगा, कब आपको मिलेगा, and then वो अपनी terms and conditions बदल देंगे, तो you will be screwed. So yeah, come here, get a student accommodation, and start making contacts, and then reach out to them, reach out to as many people as possible, join as many room hunts group as possible, and I hope you find something. I hope I find something. I'll let you guys know if I do. I'll let you guys know if I don't. I'll let you guys know if I'm deported back to India. So yeah, never mind, this is the video, and if you guys like it, if you guys want to know anything specific about me or Ireland, you can comment and I'll try to make a video on that. And I think this is also a nice form of video that I should be making. This is my first, so there is going to be mistakes, forgive me for that. If you have any suggestions for me, I am open to any constructive criticisms. The comment section is all yours. And if you like my journey or my channel, you can subscribe to my channel. And yeah, I'll see you guys on the next one. Bye.